Today we will start with sum number 19. जर्नल का sum number है 19. Journalize the following transactions in the books of Vasant. Journalize the following transactions in the books of Vasant. यहाँ पे underline the word in the books of Vasant. इसको underline करना है. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ वसंत. तो जर्नल एंट्रीज जो है, जर्नल को आपको टाइटल देना है. जर्नल को टाइटल देना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वसंत. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वसंत, ये आपका जर्नल का टाइटल रहेगा. मंथ जो है, मंथ आपको दिया है जनवरी. डेट कॉलम जो डेट कॉलम है, मंथ आपको लिखना है जनवरी. First transaction. Started business. Started business with bank balance 10,000, cash 2,500, and own stock of goods 3,500. Started business with bank balance, cash, and own stock of goods. तो इस transaction के 4 accounts हैं. In this transaction there are 4 accounts. फर्स्ट अकाउंट है बैंक बैलेंस अकाउंट. सेकंड अकाउंट है कैश अकाउंट. थर्ड अकाउंट है गुड्स अकाउंट. फोर्थ अकाउंट विल बी वसंत कैपिटल अकाउंट. Started business. Who started business? Vasant. Vasant started business. तो Vasant's capital. Started business with bank balance. Bank balance, cash, and own stock of goods. Bank balance, cash, and own stock of goods. They comes under real account. Bank balance. Bank balance का मतलब क्या है? money which we kept in the bank. money which we kept in the bank, that is called the bank balance. बैंक के अंदर आपने जो पैसे रखे, बैंक के अंदर आपने जो पैसे रखे हुए, that is called the bank balance. तो बैंक बैलेंस ये क्या है? बैंक बैलेंस ये एसेट है, ये प्रॉपर्टी है. तो that's why it comes under real account. This is not the name of the bank. ये बैंक का नेम नहीं है. बैंक बैलेंस, दिस इज एसेट, ये प्रॉपर्टी है. कैश रियल अकाउंट. गुड्स रियल अकाउंट. एंड वसंत कैपिटल, दिस इज द पर्सनल अकाउंट. कैपिटल इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन. कैपिटल किसका अकाउंट है? ये बिजनेसमैन का पर्सनल अकाउंट है. तो स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक बैलेंस, कैश एंड गुड्स. तो ये जो 3 अकाउंट है, बैंक बैलेंस, कैश एंड गुड्स, बैंक बैलेंस, कैश एंड गुड्स, ये तीनों को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे. डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये जो रूल है, ये रूल आपको अप्लाई करना है. बैंक बैलेंस, कैश एंड गुड्स. तो बैंक बैलेंस, कैश एंड गुड्स, these are the 3 properties, these are the 3 assets, they are coming in the business. Bank balance, cash and goods, they are coming in the business. So bank balance will be given debit, cash is also given debit, goods is also given debit. ये तीनों अकाउंट को डेबिट. These are the properties, these are the assets. ये सब क्या है? ये सब assets है. तो assets are coming in the business. वसंत कैपिटल को पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे. क्रेडिट द गिवर. वसंत जो है, वसंत ये कौन है? ये गिवर है. वसंत हैज गिवन बैंक बैलेंस, कैश एंड गुड्स. वसंत हैज गिवन बैंक बैलेंस, कैश एंड गुड्स टू हिज बिजनेस. वसंत ने क्या किया? वसंत ने ये तीनों एसेट्स उसके बिजनेस को दिए. तो वसंत कैपिटल, इसको रूल लगेगा क्रेडिट द गिवर.
बैलेंस का अमाउंट है 10,000, कैश का अमाउंट है 2500, गुड्स का अमाउंट है 3500। ये तीनों फिगर का टोटल 16,000, ये कैपिटल का अमाउंट है। 10,000, 2500 एंड 3500, ये तीनों फिगर का टोटल 16,000। इसका जर्नल एंट्री डेट फर्स्ट, बैंक बैलेंस अकाउंट डेबिट 10,000। On the next line, cash account debit 2,500, goods account debit 3,500, 2 capital Vasant's capital 2 Vasant's capital 16,000। इसका नरेशन बी, started business being started business with bank balance, comma cash and goods। नरेशन जो है being started business with bank balance, cash and goods। Second transaction, January 2nd, selected a building for a showroom on quarterly rent rupees 800। selected a building for a showroom on quarterly rent rupees 800। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे आपने बिल्डिंग को सिर्फ सिलेक्ट किया हुआ है। Here building has been selected for what purpose? For the purpose of showroom on quarterly rent। quarterly rent मतलब 3 months rent। one quarter is of 3 months, एक क्वार्टर 3 months का है। selected a building for a showroom, here only building is selected for the purpose of showroom। rent of the building is not yet paid। आपने बिल्डिंग का जो रेंट है, बिल्डिंग का रेंट आपने पे नहीं किया है। only the building has been selected for a showroom, तो it cannot be called as a transaction। ये ट्रांजैक्शन नहीं है, because rent of the building is not yet paid। आपने बिल्डिंग का रेंट अभी तक पे नहीं किया है, तो it is not a transaction। selected a building for a showroom, it is not a transaction। तो जर्नल में क्या करना है, जर्नल में आपको रीजन लिखना है, डेट कॉलम में डेट सेकंड, selected a building for showroom is not a transaction। यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, आपने बिल्डिंग को क्या किया, आपने सिर्फ बिल्डिंग को सिलेक्ट किया है जहां पे आपको शोरूम बनाना है। शोरूम के लिए क्या हुआ है, शोरूम के लिए आपने सिर्फ बिल्डिंग को क्या किया, सिलेक्ट किया है। द रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज नॉट येट पेड। आपने बिल्डिंग का रेंट अभी तक पे नहीं किया है, तो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन। तो इसका कोई भी जर्नल एंट्री आपको करना नहीं है। फॉर द सेकंड ट्रांजैक्शन देयर विल नॉट बी एनी जर्नल एंट्री। एंट्री क्यों नहीं करना है, बिकॉज द रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज नॉट येट पेड। आपने बिल्डिंग का जो रेंट है ये अभी तक पे नहीं किया है।
थर्ड ट्रांजैक्शन पेड बाय चेक फॉर ऑफिस फर्नीचर 2000, पेड बाय चेक फॉर ऑफिस फर्नीचर। इसके दो अकाउंट, एक अकाउंट ऑफिस फर्नीचर अकाउंट, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट, and the second account bank account. अंडरलाइन द वर्ड चेक, चेक जो वर्ड है चेक को अंडरलाइन करना है, चेक के लिए वर्ड लेना है बैंक अकाउंट। तो पेड बाय चेक फॉर ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर है बैंक, ऑफिस फर्नीचर ये रियल अकाउंट है। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर ये एसेट है, रियल अकाउंट है। बैंक ये पर्सनल अकाउंट है, बैंक इज पर्सनल अकाउंट। पेड बाय चेक फॉर ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर को क्या करेंगे? फर्नीचर को हम रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। फर्नीचर को रियल का रूल अप्लाई करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो फर्नीचर क्या हो रहा है? फर्नीचर इज कमिंग इन, तो फर्नीचर विल बी गिवन डेबिट। फर्नीचर इज कमिंग इन, देयरफॉर डेबिट। बैंक अकाउंट को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट द गिवर। बैंक जो है बैंक के गिवर है। पेड बाय चेक, पेड बाय चेक, तो चेक के जो पैसे, चेक के पैसे बैंक विल गिव द मनी, बैंक विल गिव द मनी टू द पर्सन टू whom we have given the check। आपने चेक किसको दिया है? उसको चेक के जो पैसे, ये चेक के पैसे 2000 रुपीस, ये बैंक विल गिव द मनी। तो बैंक कौन है? बैंक के गिवर है, तो बैंक को रूल लगेगा क्रेडिट द गिवर। फर्नीचर को रूल अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन। बैंक को रूल अप्लाई किया, क्रेडिट द गिवर। तो जर्नल एंट्रीज का ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2, बैंक अकाउंट 2000, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसका नरेशन बीइंग ऑफिस फर्नीचर being office furniture purchased by check। नरेशन जो है, नरेशन इसका being office furniture purchased by check। फोर्थ ट्रांजैक्शन रेंट टू पंकज, रेंट टू पंकज ₹1000। इसके दो अकाउंट्स, एक अकाउंट है रेंट अकाउंट, सेकंड अकाउंट लेना है कैश अकाउंट। यहां पे पंकज अकाउंट लिखना नहीं है, रेंट टू पंकज ₹1000। तो हियर वन अकाउंट इज रेंट एंड 1000 रुपीस इसके लिए लिया है कैश। रेंट अकाउंट है नॉमिनल, रेंट इज नॉमिनल अकाउंट, कैश अकाउंट है रियल। रेंट इज नॉमिनल अकाउंट, कैश इज रियल अकाउंट। रेंट अकाउंट को नॉमिनल का रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन है रेंट टू पंकज, तो रेंट क्या हुआ है? रेंट पेड हुआ है, रेंट हैज बीन पेड। तो रेंट को नॉमिनल का रूल लगाएंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंस। तो रेंट ये क्या है? रेंट ये एक्सपेंस है। हमने पंकज को क्या किया? हमने पंकज को रेंट पे किया है। रेंट टू पंकज ₹1000, दिस 1000 रुपीस रेंट वी हैव पेड टू पंकज। 1000 रुपीस रेंट वी हैव पेड टू पंकज। तो रेंट को रूल कौन सा लगाया? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाया। कैश अकाउंट को रियल का रूल लगाएंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश इज गोइंग आउट। रेंट को रूल अप्लाई किया, डेबिट ऑल एक्सपेंस,
कैश को रूल अप्लाई किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेट कॉलम में डेट 7, जर्नल एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका नरेशन बी, रेंट पेड टू पंकज, नरेशन जो है बी, रेंट पेड टू पंकज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है sent a donation to relief fund as owner's personal contribution 200, sent a donation to relief fund as owner's personal contribution, underline the word personal contribution, personal contribution, so this is a personal expense, personal contribution ये क्या है, ये personal expense है, तो इसके लिए जो वर्ड है पर्सनल कंट्रीब्यूशन, इसके लिए वर्ड आपको लेना ड्राइंग्स। सेंड ए डोनेशन टू रिलीफ फंड एज ओनर्स पर्सनल कंट्रीब्यूशन, पर्सनल कंट्रीब्यूशन दिस इज पर्सनल एक्सपेंसेस, तो पर्सनल एक्सपेंस के लिए आपको वर्ड लेना है ड्राइंग्स। तो इस ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट्स, एक अकाउंट है ड्राइंग्स एंड सेकंड अकाउंट है कैश। आपने डोनेशन दिया है 200 रुपीज एज पर्सनल कंट्रीब्यूशन, पर्सनल कंट्रीब्यूशन मतलब पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल कंट्रीब्यूशन इट मींस पर्सनल एक्सपेंस, तो पर्सनल एक्सपेंस के लिए वर्ड है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अकाउंट है कैश अकाउंट। ड्राइंग्स दिस इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन, ड्राइंग्स एक किसका अकाउंट है, ड्राइंग्स ये बिजनेसमैन का पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, कैश इज रियल अकाउंट। कैश अकाउंट को रियल का रूल अप्लाई करेंगे, कैश अकाउंट को रियल का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश इज गोइंग आउट। सेंट ए डोनेशन टू रिलीफ फंड एज ओनर्स पर्सनल कंट्रीब्यूशन 200, तो 200 रुपीस क्या हो रहा है, ये 200 रुपीस आर गोइंग अप, तो कैश को रूल लगाएंगे क्रेडिट व्हाट गोज अप, तो कैश विल बी गिवन क्रेडिट। यानी अकाउंट्स के अंदर whenever you write the word drawings, whenever you write the word drawings account is always debit, अकाउंट्स के अंदर ड्राइंग्स को always debit, तो जर्नल एंट्री आपका होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, जर्नल एंट्री विल बी drawings account debit, drawings account debit to cash account, amount is 200। इसका नरेशन B, donation sent, B donation sent to relief fund, B donation sent to relief fund as personal contribution, नरेशन जो है B donation sent to relief fund as पर्सनल कंट्रीब्यूशन, तो ये जो वर्ड है पर्सनल कंट्रीब्यूशन, इसका मीनिंग क्या है, पर्सनल एक्सपेंस, एंड बिकॉज इट इज अ पर्सनल एक्सपेंस देयरफॉर इट इज डेबिटेड टू द ड्राइंग्स अकाउंट, तो जर्नल एंट्री आपका होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन इसका दिया है बी डोनेशन सेंट टू रिलीफ फंड,
being donation sent to relief fund as personal contribution. Last transaction. ये लास्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 18. पेड कैश on behalf of Ramnath to Shamlal ₹1800. Paid cash on behalf of Ramnath to Shamlal ₹1800. यहाँ पे अंडरलाइन करना है on behalf of Ramnath. On behalf of Ramnath इसको अंडरलाइन करना है. तो इस ट्रांजैक्शन के जो दो अकाउंट है, एक अकाउंट है रामनाथ अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट है कैश अकाउंट. पेड कैश ऑन बिहाफ ऑफ रामनाथ टू श्यामलाल ₹1800. तो ऑन बिहाफ ऑफ रामनाथ, तो एक अकाउंट लिया मैंने रामनाथ, सेकंड अकाउंट है कैश. रामनाथ ये पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है. हम पहले कैश अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, कैश अकाउंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे. ट्रांजैक्शन क्या है? पेड कैश. तो कैश इज गोइंग आउट. ट्रांजैक्शन है पेड कैश, तो कैश को रूल कौन सा लगेगा? कैश को रियल अकाउंट का रूल लगेगा. क्रेडिट व्हाट गोज अप, तो कैश विल बी गिवन क्रेडिट. पेड कैश ऑन बिहाफ ऑफ रामनाथ टू श्यामलाल. रामनाथ को जो रूल है, रामनाथ को पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है. डेबिट द डेटर, ये जो रूल है, ये रूल आपको रामनाथ को अप्लाई करना है. हमने कैश किसको पे किया है? हमने कैश श्यामलाल को पे किया है. पेड कैश ऑन बिहाफ ऑफ रामनाथ टू श्यामलाल. तो वी हैव गिवन कैश टू श्यामलाल. श्यामलाल को जो हमने पैसे दिए 1800, श्यामलाल को हमने पैसे दिए 1800. ये पैसे हमको क्या करना है? ये पैसे हमको रामनाथ से वापस लेना है. श्यामलाल को जो 1800 रुपीस हमने पे किए, दिस कैश वी हैव टू रिकवर फ्रॉम रामनाथ. पेड कैश ऑन बिहाफ ऑफ रामनाथ टू श्यामलाल. हमने श्यामलाल को जो कैश पे किया 1800, ये कैश हमने रामनाथ की तरफ से पे किया. श्यामलाल को जो कैश पे किया 1800, दिस कैश वी हैव पेड ऑन बिहाफ ऑफ रामनाथ. तो ये कैश हमको रिकवर किससे करना है? ये कैश हमको रामनाथ से रिकवर करना है. दिस कैश वी हैव टू रिसीव बैक फ्रॉम रामनाथ. ये पैसे हमको क्या करना है? रामनाथ से रिकवर करना है. तो रामनाथ को रूल कौन सा लगाना है? डेबिट द डेटर. डेटर का डेफिनेशन, डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom we have to receive the money. हमको पैसे किससे लेना है? हमको पैसे रामनाथ से वापस लेना है. पेड कैश ऑन बिहाफ ऑफ रामनाथ टू श्यामलाल. रामनाथ की तरफ से हमने श्यामलाल को कैश पे किया 1800. रामनाथ की तरफ से श्यामलाल को कैश पे किया 1800. तो कैश क्या हो गया? कैश इज गोइंग आउट. तो क्रेडिट नोट गोज आउट. रामनाथ कौन है? रामनाथ ये डेटर है. डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom we have to receive the money. हमने जो श्यामलाल को पैसे दिए 1800, ये पैसे हमको रामनाथ से रिकवर करना है. तो रामनाथ इज ए डेटर. तो रामनाथ को रूल कौन सा लगेगा? डेबिट द डेटर. इसका जर्नल एंट्री जो है डेट 18, रामनाथ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कैश हमने किसको पे किया है? कैश हमने श्यामलाल को पे किया है. कैश हमने श्यामलाल को दिया है.
श्यामलाल को जो कैश पे किया उसके पैसे हमको रिकवर किससे करने हैं? ये पैसे हमको रामनाथ से रिकवर करने हैं। तो रामनाथ का रूल लग गया डेबिट द डेटर। डेटर का डेफिनेशन डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom we have to receive the money। इसका नरेशन being cash paid to Shyamlal, being cash paid to Shyamlal on behalf of Ramnath। नरेशन जो है, नरेशन इसका बी कैश पेड टू श्यामलाल ऑन बिहाफ ऑफ रामनाथ। जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शन है, रिमेनिंग ट्रांजैक्शन का वीडियो ये आपको कल के लेक्चर में आ जाएगा।